আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করতে যাচ্ছি। পলাতক আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন বা ইন্টারপোলের সাহায্য নেবে সরকার। রেড নোটিশ জারি করার মাধ্যমে শুরু হবে তাদের ধরে আনার কার্যক্রম। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली। आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है उन्होंने इंटरपोल के थ्रू शेख हसीना को रेड अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और इस अरेस्ट वारंट के मुताबिक शेख हसीना को भारत से पकड़ के और बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले किया जाना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर मर्डर और डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं। और जब शेख हसीना की हुकूमत को हटाया गया तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जुल्म व सितम किए और 1000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको शहीद करवाया। और इसके साथ साथ अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को जेलों में कैद रखा और बिना किसी सबूत के उनको वहाँ पे कैद रखा। यही वजह है कि डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है उसने शेख हसीना के अरेस्ट वारंट जो हैं वो इंटरपोल से जारी करवा दी हैं। और ये रेड नोटिस जो है बहुत पावरफुल है और शेख हसीना की जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं भी करता तो शेख हसीना का जो ख्वाब था कि वो बांग्लादेश जाएंगी और बांग्लादेश की इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, और अभी भी वो ये क्लेम करती हैं कि वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इन सब ख्वाबों पे पानी फेर दिया गया है। और डॉक्टर यूनुस की सरकार, बांग्लादेश आर्मी ने फैसला कर लिया है कि किसी सूरत शेख हसीना को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और शेख हसीना को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये जो रेड नोटिस है इससे भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इंटरपोल भारत को ये बोलेगा कि आपने एक ऐसी औरत को अपने मुल्क में जगह दी है जिसके खिलाफ रेड नोटिस जारी हैं। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করতে যাচ্ছি। পলাতক আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন বা ইন্টারপোলের সাহায্য নেবে সরকার। রেড নোটিশ জারি করার মাধ্যমে শুরু হবে তাদের ধরে আনার কার্যক্রম। আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুলের এমন বক্তব্যের পর সামনে আসছে কিছু প্রশ্ন। ভারতের কাছ থেকে হাসিনাকে ফেরাতে পারবে ইন্টারপোল? কতটা শক্তিশালী এই রেড নোটিশ? বিশ্বের সব দেশ কি মানতে বাধ্য এই লাল সমন? রেড নোটিশ কি কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা? যেই খুনি গোষ্ঠী আপনার জুলাই অগাস্ট মাসে গণহত্যা চালিয়েছে তাদেরকে ধরার জন্য আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করতে যাচ্ছি। কিছুদিন আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত জানিয়েছে সেখানেই আছেন হাসিনা। এমন পরিস্থিতিতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে নোটিশ জারি করলেও সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফেরত দিতে বাধ্য নয় ভারত। ইন্টারপোল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার মাধ্যমে সারা বিশ্বের পুলিশ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞরা একসাথে কাজ করতে পারেন, কিন্তু এটি কোনো আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নয়। কাউকে সরাসরি গ্রেফতার করার ক্ষমতা ইন্টারপোলের নেই। তাই হাসিনাকে ধরতে অথবা দেশে ফেরাতে নয়াদিল্লিকে বাধ্য করতে পারবে না তারা। ইন্টারপোলের পক্ষ থেকে যে রেড নোটিশ জারি করা হয় সেটা হচ্ছে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা, নজরদারি করা ও তাকে গ্রেফতার করার অনুরোধ। এই নোটিশ সরাসরি কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা নয়। হাসিনার মতো পলাতক বা অপরাধীরা যখন আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বিদেশে চলে যায় তখন সেই আসামিকে ধরতে নেওয়া হয় ইন্টারপোলের সহায়তা। অপরাধ করে ভিনদেশে পালানো কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা থাকলে সেই দেশের সরকার যাবতীয় কাগজপত্র, মামলার কপি ইত্যাদি পাঠিয়ে ইন্টারপোলকে অনুরোধ করে রেড নোটিশ জারি করতে। ইন্টারপোলের পক্ষ থেকে নথিপত্র যাচাইয়ের পর সন্তুষ্ট হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জারি হতে পারে রেড নোটিশ। সমন জারি হলে সেটা পাঠানো হয় সংস্থাটির সদস্যভুক্ত 194টি দেশের কাছে। পলাতক ব্যক্তিকে নিজের দেশে ফেরত পাঠানো পর্যন্ত তার দায়িত্ব থাকে সংস্থাটির উপর। কিন্তু ইন্টারপোল সরাসরি এসব গ্রেফতার অথবা দেশে ফেরানোর কাজ করে না। তারা নির্ভর করে থাকে সেই দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপর। কোনো দেশ যদি তাদের নিজস্ব বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় সেক্ষেত্রে ইন্টারপোল বা তাদের জারি করা রেড নোটিশের কোনো কার্যকারিতা থাকে না। অনেক বিশ্লেষকের ধারণা হাসিনাকে ফেরাতে যদি রেড নোটিশ দেয়া হয় নানা অজুহাতে সেই নোটিশকে পাত্তা দেবে না ভারত। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে ভারতের উপর কৌশলগত চাপ হিসাবে কাজে আসতে পারে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ।
কিন্তু তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হলে রাজি করাতে হবে নয়াদিল্লিকে। কারণ মোদি সরকার যদি ইন্টারপোলের নোটিশ উড়িয়ে দেয়, কিছুই করার থাকবে না বাংলাদেশের। তাই জুলাই আগস্ট গণহত্যা মামলায় হাসিনা সহ পলাতক আসামিদের বিচারের মুখোমুখি করতে রেড নোটিশের পাশাপাশি প্রয়োজন হবে আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতা ও সমর্থন। হাফিজুল ইসলাম, বাংলা ভিশন। जी, तो ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर यूनुस की जो सरकार है और बांग्लादेश के शहरी, उन्होंने ये फैसला किया कि किसी सूरत शेख हसीना को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और किसी सूरत शेख हसीना को माफ़ नहीं किया जाएगा, और शेख हसीना को उसके जो जुर्म है उनकी सज़ा दी जाएगी। या तो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजारेगी या उसको बहुत सख्त सज़ा यहाँ पे सुनाई जाएगी। इसी वजह से अब रेड नोटिस जो हैं वो जारी करवाए जा रहे हैं, और इंटरपोल जो है पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग मफरूर होते हैं और जुर्म करके अपने मुल्क से भाग जाते हैं, ये पुलिस उसके रेड नोटिस जो है वो जारी कर सकती है। और ये नोटिस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किसी भी मुल्क की पुलिस इस पे अमल करती है और उस शहरी को पकड़ के उस मुल्क के हवाले किया जाता है। और भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि शेख हसीना को अमेरिका, यूके और डिफरेंट कंट्रीज़ ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, और भारत ने शेख हसीना को पनाह दी हुई है। और यही वजह है कि ये नोटिस भारत को दिया जाएगा, और भारत जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी बदनामी हो। तो शेख हसीना जो हैं बहुत मुश्किल में आने वाली हैं, और अगर वो बांग्लादेश के हवाले कर दी जाती हैं तो बांग्लादेश की अदालतें बांग्लादेश के शहरी किसी सूरत उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, और उन्हें यहाँ पे सख्त से सख्त सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। अपने दौरे हुकूमत के दौरान शेख हसीना ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए, लोगों को जेलों में कैद करवाया, और अपने जो ओपोनेंट्स थे अपोजिशन पार्टी उनको भी जेल में कैद करवाया, और खालिदा ज़िया जो BNP पार्टी थी उनके अपोजिशन, उनको भी अपने दौरे हुकूमत में जेल में कैद करवाया। और अब बांग्लादेश के जो हुकूमत है उसने उन सब कैदियों को जो है वो रिहा कर दिया है, और शेख हसीना की जानिब से लोगों को सोल्ट्री कन्फाइनमेंट में रखा गया, उनको एक कमरे में कैद रखा गया, और सूरज की रोशनी और किसी इंसान से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये एक मैसेज है उन हुक्मरानों के लिए जो अपने लोगों पे जुल्म करते हैं। आज शेख हसीना पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुकी हैं, और तजलील उनकी हो रही है, और बांग्लादेश के लोग उनसे नफ़रत करते हैं, और कोई भी मुल्क उनको अपने मुल्क में जगह देने को तैयार नहीं है। और ये औरत जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, इसने अपने बाप की भी इज़्ज़त जो है उसको ख़राब किया है, और ये औरत अब अपने मुल्क में भी कदम नहीं रख सकती। तो इससे बुरी कोई चीज़ नहीं होगी किसी इंसान के लिए जिसने इतना अरूज देखा, और अब उसका ये हाल है कि वो दर बदर ठोकरें खा रहा है भारत में। तो बहुत जल्द इंटरपोल का जो नोटिस है वो रेड नोटिस जारी हो जाएगा, और शेख हसीना इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।